भेज दिया सर, HYD वाले पे देखो। हाँ हाँ, झूठा है। अभी मतलब स्टार्ट ही किया मैंने। है, वो तो अभी किया, इसके पहले किया है मैंने, देखो देखो। A very warm welcome to all of you and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk. Today we will have with us Dr. Sachin Sharma, and he will going to discuss about role of youth and youth organization in reconstructing Bharat. A very warm welcome to all of you to National International Web Series webinars. Today we have with us Dr. Sachin Sharma, and he is going to discuss the role of youth and youth organization in reconstructing Bharat. A very warm welcome to all of you and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk. And today we will have with us Dr. Sachin Sharma, and he is going to discuss about role of youth and youth organization in reconstructing Bharat.
A warm welcome to all of you and welcome to the National International Webinar Series hashtag Modern Talk. And today we are going to have with us Dr. Sachin Sharma. He is an eminent educationist, Regional Director, Boj Open University and Executive Council member of RGPV Bhopal and District Coordinator of NSS Indore. And he is going to discuss about the role of youth and youth organization in reconstructing Bharat.
A very warm welcome to everyone and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk. And today we have with us Dr. Sachin Sharma, Regional Director, Bhoj Open University and Executive Council Member of RGPV Bhopal and District Coordinator of NSS Indore. He has joined us and we are going to discuss on the role of youth and youth organization in reconstructing Bharat. वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी आवाज नमस्कार आपको? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी नेशनल वेबिनार सीरीज में, नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज #मॉडर्न टॉक में। मेरी आवाज क्लियर है सर? आपको आ रही है क्लियर आवाज? सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार सुन सर। पा रहा हूँ आपकी आवाज जी। नमस्कार सर। इसी प्रॉब्लम थी अभी कुछ नेटवर्क में, तो मैं ठीक से। हेलो। हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज में। शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। लाइव जी स्टार्ट कर दिया है सर मैंने लाइव। जी जी जी। इन अ मिनट हम लोग फेसबुक पर भी लाइव रहेंगे सर, और साथ ही हमारे साथ जूम में भी काफी करीब करीब 80 पार्टिसिपेंट्स जो है वो जुड़ चुके हैं। आप भी अपने उससे देख सकते हैं। जी जी तो थोड़ा सा तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय खारिया जी को, पुनीत जी को। जी बोलिए मैडम। जी सर, तो आपकी अगर परमिशन हो तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। जी जी मैडम जी बिल्कुल। So a very warm welcome to all of you and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk. Today we have with us a very eminent speaker and very eminent educationist, Dr. Sachin Sharma ji. He is the Regional Director of Bhoj Open University and Executive Council Member of RGPV Bhopal and District Coordinator of NSS Indore. And we are going to discuss on the topic role of youth and youth organization in reconstructing Bharat. We also have with us Dr. Puneet Kumar Dwivedi ji, Group Director, Modern Group of Institutions, Indore. So before moving further, I would like to give a brief introduction about our organization. सर मेरा आवाज आपको शायद क्लियर आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं? हाँ मैडम आ रहा है, कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस है, पर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। फॉर दैट आई नीड टू शेयर द स्क्रीन। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको सर? यस यस। Modern Group of Institution is a premier group of leading institute in Indore affiliated to RGPV Bhopal, GAVB Indore and CBSE New Delhi. We are approved by AICTE New Delhi, NCT and PCI New Delhi. Modern Group imparting quality education in the field of pharmacy, commerce, management and education. We offer more than 8 courses: Pharma, M Pharma, BBA, BCom, B.Ed and MBA. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industries, Modern Lab and Nandini Medical Laboratories Private Limited. Modern Lab was established in 1969 by late C.T.C. Karyaji, and Nandini Laboratories was established in 1998. Both gained prestigious acclamation in All India rating of pharma industries. We also have a Modern International School, which was established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship, and hence we introduced MP's first pharma incubation center, Modern Incubation, in the year 2019, sponsored by MSME Government of India. We also recently we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for making largest human image of medication capsule. Also, we are recognizing participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India.
The institute also have Modern Innovation Council, which is an institute innovation council by MHRD Innovation Cell. So, and recently in the month of June, July, we have done this hashtag Modern Talk webinar series, and in which we have almost completed 43 webinars, in which 8 were international webinars. So before moving further, I would like our group director, sir, Dr. Puneet Kumar Dwivedi ji, to welcome our guest. थैंक यू मैम। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि इस समय मॉडर्न टॉक सीरीज में, नेशनल वेबिनार सीरीज में युवाओं को एड्रेस करने के लिए हम युवाओं के मार्गदर्शक, और न जाने कितने युवाओं के मार्गदर्शक डॉक्टर सचिन शर्मा जी आज यहाँ मौजूद हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। और निश्चित ही सर का जो वास्ट एक्सपीरियंस रहा है युवाओं के साथ, चाहे वो एनएसएस हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, या विश्वविद्यालय से संबंधित जो कार्य हैं, और जो एक शिक्षक होने के नाते जो इनकी पहुंच है, या जिस तरह से इन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है, शिक्षकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज डॉक्टर सचिन शर्मा जी हमारे बीच में हैं। और आज का जो विषय है उस पर हम भारत कैसे बने, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ इंडिया, युवाओं के द्वारा नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे हो, उसमें युवाओं का कैसे योगदान रहेगा, इस विषय पर आज हम डॉक्टर सचिन शर्मा जी से उनके उद्गार, उनके उद्बोधन सुनेंगे। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, ग्रुप डायरेक्टर मॉडर्न ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ और चेयरमैन श्री अनिल खरिया जी एंड वाइस चेयरमैन श्री शांतनु खरिया जी, आई वेलकमिंग डॉक्टर सचिन शर्मा जी in this hashtag Modern Talk National Webinar Series. And today we are fortunate to have you here, sir. Thanks for accepting our invite, and thank you so much, sir, for joining today. Namaste. जी सर, धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है हमारे गेस्ट का देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस। डॉक्टर सचिन शर्मा जी, रीजनल डायरेक्टर भोज यूनिवर्सिटी एमपी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर ऑफ आरजीपीवी भोपाल एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एनएसएस इंदौर। डॉक्टर शर्मा जी ने एमबीए, एमकॉम, एलएलबी, बीजे और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर शर्मा जी कई समितियों के निदेशक व सदस्य रहे हैं, जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कार्य परिषद सदस्य हैं, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के इंदौर जिले के जिला संगठक हैं। डॉक्टर शर्मा ने छात्र जीवन में वर्ष 1991 से राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर 10 दिवसीय विशेष शिविर, वृक्षारोपण, सामाजिक जागरूकता आदि कार्यक्रमों में सहभागिता की है। साथ ही वर्ष 1998 से 2009 तक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया है। इस दौरान 10 अलग अलग ग्रामीण स्थानों पर 50 विद्यार्थियों के साथ 10 दिवसीय एवं 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए हैं। वर्तमान में डॉक्टर शर्मा के साथ इंदौर जिले के लगभग 10,000 युवाओं का सक्रिय समूह है। डॉक्टर शर्मा ने कई शोध कार्य किए हैं। वर्तमान में डॉक्टर शर्मा के अंतर्गत 10 विद्यार्थी शोधरत है पीएचडी के लिए। डॉक्टर शर्मा के 50 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल व शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक सेमिनार व कार्यशाला में सहभागिता एवं विषय प्रवर्तन किया है। डॉक्टर सचिन ने स्वच्छ इंदौर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अनेक कार्य किए हैं। मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं आपका इस नेशनल वेबिनार सीरीज में हार्दिक स्वागत करती हूं सर। अब मैं चाहती हूं कि आप अपनी इंट्रोडक्टरी टॉक अपनी टॉपिक पे रोल ऑफ यूथ एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करें। सर आपका ऑडियो म्यूट है। यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप सभी जी, बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज
सर आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है। सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, अब आ रही है पुनीत आपकी आवाज। दीप्त हूँ कि आज वो लॉकडाउन के समय में और जब पूरा जी मैडम, अब आ रहा है आवाज आपको? जी सर, आवाज आ रही जी है। हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, अनम्यूट कर लिया है उसे। अब आ रहा है आवाज आपको? जी जी सर। अब आवाज कुछ नेटवर्क इशू है शायद। जी जी मैडम, अब आवाज आ रही जी है? जी सर, जी जी, आपका आवाज आ रहा है बिल्कुल क्लियर। जी हाँ। तो सबसे पहले तो मैं मॉडर्न ग्रुप और पुनीत द्विवेदी, खारे जी, आप सबका बहुत बहुत अच्छा अवसर आपने मुझे युवाओं से जुड़ने और बात करने के लिए दिया है अच्छे टॉपिक पर। और पिछले कई दिनों से जो आपकी यह सीरीज चल रही है वो बहुत ही अच्छे अच्छे विषयों पर चल रही है। कुछ उसमें मैंने ज्वाइन किया है, तो निश्चित भी चूंकि आज का जो हमारा विषय है पुनर्निर्माण में, रिकंस्ट्रक्टिंग भारत जो है, उसमें यू का क्या रोल है, रोल पर मुझे बात करनी है। तो लोग चूंकि अभी सभी को मालूम है कि भारत एक युवाओं का देश है, यहाँ की जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूथ है। कि हम देखें तो इसकी कुछ भूमिका पर जाए तो सबसे पहले हम बात करें तो हम भी खासकर आज से युवाओं को ये चीज मालूम ही नहीं है कि भारत आजादी के पहले यदि हम देखें या सर के यहाँ से कुछ नेटवर्क इशू लग रहे हैं। जी 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 सर। नेटवर्क इशू आ रहा है। जी जी सर, आपके यहाँ से थोड़ा सा वीक दिखा रहा है नेटवर्क इसमें। हेलो। जी सर, हाँ आपकी बोलिए आवाज। सर, आवाज आ रही, जी बोलिए जी सर। जी हाँ। तो यदि हम बात करें तो आजादी के पहले से ही हम देखें तो भारत कई क्षेत्रों में लीड कर है कि किस तरह की हमारी शिक्षा प्रणाली थी। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद भारत बहुत पिछड़ा देश रहा होगा, पर यदि हम व्यापार व्यवसाय की भी बात करें तो भारत व्यापार व्यवसाय को भी लीड करता था। हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है, जो हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ का कपड़ा रहा हो, हमारे यहाँ के रत्न जवाहरात रहा हो, जो भारत विदेशों को देता था, निर्यात करता था। बहुत सारे हमारे जो समुद्र तट है वहां से मिलता है कि व्यापार के कई प्रमाण मिलते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो कि हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, कहीं ये हो सकता है कि भाई भारत में तो व्यापार व्यवसाय नहीं रहता था, या भारत में तो इतना आगे नहीं था, हम तो शुरू से ही पिछड़े हुए देश रहे, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो मुझे प्रमुख चीज लगती है कि कहीं ना कहीं जो 200-400 साल की हम लोगों की गुलामी रही हुई है, या हम बोल सकते हैं कि पूरे भारत में तो कभी राज नहीं रहा, पर मुगलों का जो समय रहा हो, या खासकर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जो भारत पर राज किया है, तो उस समय में एक बड़ी चीज जो उन लोगों ने हमारे साथ की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को, और उनको जब ये लगा कि किसी भी रूप में यदि किसी देश पर हमें राज करना है, तो सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं ना कि उनका जो पास्ट रहा है, जो अतीत रहा है, उसको इस तरह से कर दिया जाए कि एक गौरव की भावना, एक आत्मसम्मान की भावना खत्म हो जाए कि भाई हम लोगों का पास्ट तो इतना अच्छा नहीं रहा है, हम लोगों ने तो कोई इतना काम नहीं किया है।
तो ये चीज बड़ी प्लानिंग से हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, या यदि हम बोले तो अलग अलग कई चीजों में समझाकर, तो खासकर हमारे युवाओं के दिमाग में एक चीज आ गई है कि हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए थे, हम लोगों का जो सोच था वो इतना अच्छा नहीं था, हम लोगों का जो पुराना समय था जो हम काम करते थे इतना अच्छा नहीं था। तो यह प्रॉब्लम एक आई है, और खासकर जो अंग्रेजों ने किया है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की है कि जिसमें आप ना हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर तैयार हो सकते हैं, ना कोई वैज्ञानिक तैयार हो सकते हैं, ना बहुत अच्छे व्यापार करने वाले तैयार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे लोग प्रोड्यूस किए कि उन लोगों को सिर्फ जो उनका काम था ऑफिस चलाने के लिए कि एक अच्छे क्लर्क मिल जाए या अच्छे ऑफिस संभालने वाले मिल जाए। तो इस कारण से भारत कई चीजों में बोल सकते हैं पिछड़ता रहा। यदि हम बात करें आजादी की भी बात करें तो देश आजाद हुआ 1947 में। उसके लेकिन जिस तरह से आजादी मिलनी थी तब भी ये भाव नहीं आ पाया युवाओं में कोई एक गौरव वाला। और आजादी मिलने के बाद जो खासकर हम बोल सकते हैं कि युवाओं की जो बने उस समय 3 तरह के माइंडसेट उन लोगों के बने। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि कुछ लोगों ने सोचा कि भाई आजादी हमारे पूर्वजों ने लड़के किया है, वो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने मूवमेंट किए हैं, उन्होंने आंदोलन किए हैं, तो हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है, हमारे परिवार के लोगों ने ये काम किया है, तो स्वाभाविक था ऐसे लोगों को लगा कि हमने जो त्याग किया है तो इसको भोगने का अधिकार हमारा है, ये हमारा राइट है कि हम अब सत्ता की तरफ जाएं, हम इस देश को चलाएं। तो निश्चित ही ऐसे माइंडसेट वाले लोग सत्ता की तरफ आए। दूसरे कुछ लोग ऐसे थे, खासकर उसमें यूथ की क्या सर आपके यहाँ से थोड़ा बैंडविड्थ में प्रॉब्लम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? यहाँ तो आवाज आ रही है, मेरे पास आ रही है। जी सर क्या? सर के यहाँ से कुछ नेटवर्क इशू है सर, लो बैंडविड्थ दिखा रहा है इसमें। सर को लोकेशन अगर चेंज कर लें थोड़ा सा। हाँ मैं बोल देती हूँ एक बार सर को। हाँ? जी जिन्होंने ये सोचा हुआ है, ये अभी एक पड़ाव है, अभी मंजिल मिल बाकी है। भारत को हमें आगे बढ़ाना है, भाव पर ले जाना है, और उसके लिए हम लोगों की सोच बनी है कि भाई भारत आजाद हुआ। जैसे हम लोग बात करते हैं कई बार, जो आज का टॉपिक भी है रिकंस्ट्रक्शन की, हम लोग बात करते हैं भाई रिकंस्ट्रक्शन से। आज जो मेरे बहुत साथी जुड़े हैं तो हम इस बात को बताते हैं कि जब हमारा मकान ऑलरेडी बना हुआ रहता है, जब नया बना तो हम उसका कंस्ट्रक्शन और है कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे ही चूंकि भारत देश तो बन गया था, दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में एक देश है, बहुत से हमारी परंपरा रही है, परंतु कई समय की गुलामी और कई लोगों के राज करने के बाद जो चीज आ गई थी, तो वो लगा कि भी भारत का पुनर्निर्माण करना चाहिए, भारत का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो ऐसे सोच के युवाओं ने काम किया और बहुत सारे ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। खासकर मेरे इंट्रोडक्शन में दिया है, मैं एनएसएस का भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसमें भी काम करता हूँ। तो विद्यार्थी परिषद जैसे यूथ के ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जिन्होंने सोचा आजादी जो मिली है, मतलब एक लाइन में कि हमारे लिए मंजिल है, अभी पड़ाव बाकी है, ये हमारा एक रास्ता है, एक पड़ाव है, अभी हमारी मंजिल बाकी है। तो ऐसे युवाओं ने देश के लिए काम करना शुरू किया। अब हम यदि बात करें तो युवाओं का जो रोल था, ये अभी तक भी हम बोल सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 के बाद भी देश ने बहुत सारे काम किए हैं, तरक्की की है, बहुत रूप में हम लोग आगे भी बढ़े हैं, पर ऐसे देश आज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें वो कमी लगती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे देश बोली गई है कि भारत के अभी चर्चा चलती है, जबकि भाई चीन आगे बढ़ रहा है, तो एक समय चीन ने ये चीज कही थी कि भारत का जो यूथ है जो पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है, और एक बड़ी मजे की बात है कि जो काम कर रहा है ये अपने दम पर कर रहा है, ये अपने दम पर कर रहा है, इसको यहाँ के सिस्टम से
जितनी मदद मिलना चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। वो खुद की यहाँ के संघर्षों को जीतते हुए दुनिया में गया, आगे बढ़ा। तो उनका मानना था कि जब सिस्टम इसके सही तो निश्चित ही भारत का जो यूथ है या भारत जो है सारी दुनिया में एक सुपर पावर बनेगा और वो इस देश पर, वो सारी दुनिया पर राज करेगा। राज किसी को युद्ध करके नहीं करेगा, पर वरन अपने ज्ञान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अपनी वसुधैव कुटुंब की योजना के आधार पर वह आगे बढ़ेगा। साथियों, यदि हम बात करें तो आप अभी भी आंकड़े जब देखेंगे, आप सारी दुनिया में देखें, विश्व के जितने देश हैं, अधिकतर देशों में आप देखेंगे तो वहां की जो लीडरशिप है उसमें भारतीय ही प्रमुख स्थान पे हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के ऐसे कई देश है जहाँ राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सांसद, महापौर प्रमुख भूमिका में भारतीय लोग हैं। चाहे हम मॉरिशस की बात करें, चाहे बहुत सारे हम कैरिबियन कंट्रीज की बात करें कि जिनको काम करवाने के लिए पहले ले गए थे और आज वहां पर भारत आए पोजीशन में आया है। हम अभी हाल ही में बात करें, यदि हम यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहां पर जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसको भारतीय मूल के जो मेयर है लंदन के, वो हमारे इंदौर के ही। हम अमेरिका की बात करें जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है या जो दुनिया को लीड कर रहा है, संभाल रहा है, तो वहां पर भी जो वहां के राष्ट्रपति के सलाहकार, उसमें एक बड़ी संख्या भारत के लोगों की है। वहां पर जो लीडरशिप में है वहां पर बहुत सारे लोग भारत के हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत पावर में तो है, इस भूमिका में तो आ रहा है। दूसरी हम प्रमुख बात करें, यदि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो आज अमेरिका में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज भारत या भारत वंश के लोग वहां पर नहीं रहे। तो वो आज उस इंडस्ट्रीज में भी काफी काम कर रहे हैं। यदि हम बात करें चिकित्सा व्यवस्था की, तो ब्रिटेन आदि हम देशों की बात करें तो मैक्सिमम भारतवंशी लोगों ने वहां पर चिकित्सा व्यवस्था को भी संभाल रखा है। व्यापार व्यवसाय में भी कई देशों ने देखा है। तो यह जो चीजें हुई हैं ये किसी विशेष प्रयास से नहीं हुई, वरन हम बोल सकते हैं कि यहाँ थी जो उनकी सोच थी, जो ताकत थी, उन्होंने अपने आप इस करके। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो संगठन है उसको देश का विश्व गुरु बना सकते हैं, एक सुपर कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे कुछ उदाहरण दूंगा मेरे बहुत सारे युवा साथियों के, क्योंकि ये भाषण नहीं है, चर्चा का विषय है। और अभी जब मैं खुद भी स्टूडेंट, प्रोफेसर बनने के बाद भी करीब करीब आज मैं 20 से 25 सालों से एनएसएस के लिए काम कर रहा हूँ। पहले कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया है, उसके बाद 2009 से मैंने, और साथ ही साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा छात्र संगठन है जिसमें लाखों युवा जुड़े हुए हैं, अनुशासित युवा जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में करीब करीब पिछले 20 वर्षों साथ काम कर रहे हैं। से मुझे देखने में ही है, तरीका समझ में आया है। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों से शेयर करूं कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन और इसके माध्यम से कितने युवाओं में चेंज हम सबको मालूम है। अभी हम लोग चैलेंजेस की भी बात करेंगे, या कई लोगों को लगता है कि भाई ये तो क्या काम कर सकते हैं, सड़क साफ करने का काम करते हैं, नालियां बनाने का काम कर सकते हैं, पेड़ लगाने का इनको बोलते हैं। पर आज हम कहते हैं कि समाज से जुड़ने में जो सबसे ज्यादा जो रोल है जो इन संगठन के माध्यम मिलता है वो अपॉर्चुनिटी हमें, मैं आज आप लोगों को से कंटिन्यू चर्चा होती है और जिसको बोल सकते हैं केस स्टडीज के रूप में मैं उनके उदाहरण देता हूँ। मैं इंदौर का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं एनएसएस का काम कर रहा हूँ, सेंट रेफरेंस स्कूल का नाम आप सभी ने सुना होगा। इंदौर का एक अच्छा स्कूल है। हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की बहुत अच्छी इकाई वहां पर काम करती है। हम लोग जो काम करते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक जो रहता है वो हमारी नियमित गतिविधि रहती है, रेगुलर एक्टिविटी, जिसमें नियमित रूप से हम समाज कार्य के लिए कुछ काम करते हैं या व्यक्तित्व विकास के लिए काम करते हैं। और दूसरी जो हमारी रहती है उसके अंतर्गत 7 दिन का या 10 दिन का शिविर। चूंकि जुलाई अगस्त में जो सेशन रहता है, हर बार हम लोगों की एक होती है कि हमें इस बार क्या काम करना है। एक बार वहां कैसे ही लोगों के साथ बैठना हुआ
वहाँ चूंकि गर्ल्स स्कूल है, तो ये रहा कि सर हमें कुछ अच्छा काम करना है, कुछ नया काम करना है और ऐसा काम करना है जो कंटिन्यू चले और जिसके रिजल्ट आए। आप यकीन मानिए ये मेरी तरफ से नहीं था, एक स्टूडेंट और टीचर की तरफ से सुझाव था। ये करीब 10-12 साल पहले की बात है। वो जो उनका प्रोजेक्ट महिला जेल है इंदौर की, उन्होंने ये सोचा कि भाई उस महिला जेल में कहीं ना कहीं जो अपराध किए हैं, जो क्राइम हुए हैं, उसके लिए बहुत बड़ा कारण है वो अशिक्षा है। पढ़े लिखे नहीं होने से अपराध हो जाते हैं, समझ की कमी रहती है। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया जेल में जितनी भी महिला कैदी हैं, हम उन सबको इस सेशन में पढ़ाएंगे और वहां पर ये टारगेट लेंगे कि 100% साक्षरता। अब चूंकि जैसे बहुत सारे जो यूथ सुन रहे हो आता है कि भाई ये काम तो हम करेंगे, पेरेंट्स से बोलेंगे अरे हो करने जा, तो आप सर के यहाँ से कुछ नेटवर्क इश्यू है, तो प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ। सर वापस से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर चुके हैं सर। जी जी मैडम, कुछ जी प्रॉब्लम आ रही है बार बार हाँ, कुछ नेटवर्क का। नेटवर्क तो हाँ, शायद हो सकता है केबिन में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो जी नेटवर्क की। तो उन लोगों ने एक समूह ऐसा बनाया कि भाई रोज तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी भी पढ़ाई है 11th का 11वीं के स्टूडेंट रहते हैं। फिर ये तय किया कि भाई ये क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए। 10-20 ग्रुप तैयार हो गए। हर ग्रुप को सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन में एक एक ग्रुप एक एक दिन वहां पर जाए और वहां पर जितने भी महिला कैदी उनको पढ़ाए। अब रहा क्या काम, एक ग्रुप को सिर्फ एक दिन जाना रहता है, यानी एक गर्ल्स का काम कितना था, एक लड़की का काम सप्ताह में एक दिन जाना, 1 से 2 घंटे के लिए जाना, वो आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते थे। ऐसे रोज अलग अलग ग्रुप जाते थे। वहां पर जो कैदी शिक्षित नहीं थे उनको साक्षर बनाया, पढ़ना लिखना सिखाया। उसका परिणाम ये रहा कि जब फरवरी में ये सेशन समाप्त हुआ पूरा, तो जितनी भी जब वहां पर उस समय जो कैदी रजिस्टर्ड थे महिला कैदी, वो सभी साक्षर थे। ये प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि उसके बाद भी जो स्टूडेंट आते गए, इसको कंटिन्यू करते गए। तो देखिए एक छोटा सा कॉज, एक छोटा सा उन्होंने दिमाग लगाया, तो कितना अच्छा काम एक युवा पीढ़ी कर पाई। जो मैं आप लोगों को खासकर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं कि सर एक चीज हमेशा बोलते हैं कि जो बहुत सारे परिवर्तन की बात सोचता है कि मैं सब चीज बदल दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा देश को समाज को, तो वो संभव नहीं है। हम एक छोटा सा कोई काम लें और उसको आगे बढ़े जाए। निश्चित ही हम सभी लोग यदि एक छोटा छोटा काम करेंगे तो करोड़ों लोग मिलकर हम समाज की, देश की जो समस्याएं हैं उनको फेस कर पाएंगे, उनको दूर कर पाएंगे। इससे और बहुत सारे उदाहरण है मेरे सामने। हमारे जो एनएसएस की इंदौर में करीब करीब 100 से 125 स्कूल कॉलेज में यूनिट्स चलती है, वहीं के साथियों के अनुभव है। एक बार हम लोगों ने एनएसएस के जो हमारे कैंप लगते हैं, वो लोकल कैंप भी रहते हैं, वो हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल ऐसे कैंप लगते हैं। तो उस कैंप का ही मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा। जब हम उस कैंप में ले जाते हैं, ज्यादातर शहरी छात्र रहते हैं, तो उनके दिमाग में एक वो प्रश्न रहता है कि भाई हम लोग जब गांव जाएंगे तो गांव के लोगों को हम साक्षर करेंगे, गांव के लोगों को हम कुछ अवेयरनेस लाएंगे, उनको हम सिखा के आएंगे। पर मैं उनसे हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। आप कुछ चीज उन्हें सिखा के आएंगे, कुछ चीज वहां से सीख के आएंगे। और देखिए एक और मैं बड़ा अच्छा किस्सा आप लोगों को बताता हूँ। एक बार हम लोगों का ऐसा ही नेशनल लेवल का कैंप था, जो महाराष्ट्र के किसी गांव में लगा हुआ था। इंटीरियर का गांव था, ट्राइबल गांव था, जनजाति के बहुत सारे लोग थे। चूंकि सभी लोगों को मालूम है इस तरह के कोई शिविर लगते हैं और बाहर का कोई व्यक्ति आता है, तो शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों का अटैचमेंट ज्यादा रहता है। वो 1-2 दिन में उनसे जब बातचीत हो गई, दोस्ती हो गई, आना जाना हो गया, तो वहां पर कुछ फंक्शन होता है तो वो लोग हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो वहां पर गांव के जो सरपंच है, जो प्रमुख व्यक्ति है, उनके घर में विवाह था। तो उन्होंने आमंत्रित किया कि सर आप लोग आइए, मेरे साथ कुछ टीचर्स और थे। जब हम लोग गए तो 2 दिन के फंक्शन थे, शादी जिस दिन होने वाली थी उसके 1 दिन पहले का वो प्रोग्राम था। और हमने वहां पर बैठे हुए थे, एक बड़ी अजीब चीज देखी कि शादी में जो भी मेहमान आ रहा है, वो एक बड़ी थाली लेकर आ रहा है, जिसको बोलते हैं थाली परात या बड़े बर्तन, और उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है, और वो लाकर एक कमरे में उसको रख रहा है। अब चूंकि सभी लोग जो आ रहे हैं, जितने गेस्ट आ रहे हैं, वो थाली ले लेकर आ रहे हैं और उसको एक कमरे में रख के आ रहे हैं। उस थाली
बड़ा मन में एक सहज प्रश्न जुगा कि भाई शादी में जब हम लोग आते हैं तो वहीं पे भोजन करेंगे, वहीं पे हमारा खाना होगा, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने चूंकि हमारे साथ जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनसे हमने पूछा कि ये थाली क्या है और ये सब लोग क्यों लेके आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ का एक सिस्टम है। उन्होंने उनके शब्द में बोला कि एक रिवाज है हमारे यहाँ का कि हमारे गाँव में जब भी कोई विवाह होता है, शादी होती है, किसी के भी घर में होती है, तो गाँव के प्रत्येक घर से एक तय चीजें हैं, एक हर व्यक्ति अपने से एक थाली लाता है, उसमें एक बड़ी उसमें एक आटा होता है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, आलू प्याज वगैरह, एक कटोरी में घी होता है, शक्कर होता है, वो सारी चीजें लाके सब घर से जमा होता है। फिर अगला प्रश्न था, चूंकि भाई हम शहर के लोग जुड़े हुए हैं तो हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि क्यों हो रहा है। हमने भाई इसका आप क्या करते हैं जो मटेरियल आता है? तो बोला हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है कि कल जब फेरे होंगे, मैंने बोला जब शादी होगी, जब मेन जो भोजन बनेगा, तो बोले जो ये सारा चीजें ही ना, जो आटा दाल चावल ये जो सब लोग गाँव के घरों से आया है, इससे ही पूरा खाना बनेगा। कल सारे पकवान सभी चीजें इससे ही तैयार होंगी। फिर अगला प्रश्न हमारे मन में तैयार था, जो चीजें थी कि ऐसा क्यों होता है कि भाई वो जो अपनी बुद्धि जैसे चलती है कि क्या ये हेल्प के रूप में करते हैं या कुछ ऐसे गरीब परिवार या जरूरतमंद परिवार ऐसा बुद्धि नहीं करते? बोले नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरपंच है, ये संपन्न है गाँव के, चाहे रईस के शादी हो चाहे गरीब के शादी हो, हमारे गांव में जब किसी के यहाँ भी शादी होती है तो यही परंपरा है कि सभी घरों से सामान आता है, उसी से चीजें बनती है और मेनू भी फिक्स है। चाहे गांव के किसी भी परिवार में शादी हो, गरीब क्या हो चाहे रईस क्या हो, ये आया है तो भाई ये पूड़ी बनेगी, ये सब्जी बनेगी, ये 2 मिठाई बनेगी, दाल बनेगी, चावल बनेगी, ये तय चीजें हैं, ऐसा कर रहे हैं। हमला भाई ऐसा क्यों करते हैं, कुछ इसके पीछे कारण? बोला हम नहीं, हम कहीं कहीं ऐसा करते हैं, पर हम देखते हुए आ रहे हैं, जब हमारे घर में भी हमने पहले देखा, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, उन नाना जी ने, नानी जी ने, सब ने देखते आ रहे हैं, हमारे गांव में कई पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। अब साथियों, जब मैंने ये चीज हमारे शिविर में चर्चा की, चूंकि एक बड़ी सोशल केस स्टडी है ये, यदि हम बात करें तो वो लोग जो काम कर रहे हैं, यदि आप उसको सिंपल तरह से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पुरानी चीज चली आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। पर सोचिए जिसने यह नियम बनाया होगा, आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सबका सॉल्यूशन उसने एक साथ दे दिया। देखिए कैसे हम कई प्रोग्राम जब चलाते हैं तो हम पहली बात तो ये बोलते हैं, आज आप लोगों को भी मालूम होगा कि जब किसी भी घर में विवाह आदि रहता है तो एक होड़ की प्रवृत्ति आया तो मैं उससे ज्यादा को बुलाऊंगा। मेरे पड़ोसी के यहाँ पर इतने सारा खाने के चीजें बनी थी, इतने डिशेस बने थे, इतने आइटम बने थे, तो मैं उससे ज्यादा बुलाऊंगा। अब इसमें जो संपन्न है वो कर लेता है, तो व्यक्ति ऐसे संपन्न है, उसका आपने नहीं, उसके नोट लगती है, यह हम बोलते हैं कि एक तरह का उसके अंदर एक वो मन दुखी होता है कि भाई ये मैं अपने बच्चों के लिए ये काम नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं दूसरी जो चीज है कि जब इतने सारे आइटम बनते हैं, इतना वेस्टेज होता है, तो बहुत सारा जो बनता है, ग्रहण से कितना नुकसान होता है, कितना वेस्टेज होता है, उसके हम केस स्टडीज करते हैं। हम यूथ उसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, उसको लेकर हम लोग यूनिसेफ सब अलग अलग को रोकना है। प्रोग्राम नहीं चल रहा, एक सिंपल सा नियम हमारे गांव में, हमारे समाज में जो शादी होती है उस तरह से किसी भी व्यक्ति के मन में हीन भावना नहीं आई। चाहे वो गरीब था या अमीर था, सभी में ये ऐसा नहीं सोच रहा मैं गरीब हूँ इस कारण मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी। दूसरी जो बात थी, बहुत सारा अनाज जो था वो वेस्टेज होने से बच गया, समाज में आपस में प्रेम आया। तो ये केस स्टडी का विषय है कि कितनी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया। तो ऐसे बहुत सारे जब कैंप में मैं यूथ को ले जाता हूँ, अलग अलग गाँव में जाते हैं, तो उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो अलग अलग जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हम लोगों की परंपराएं हैं, जो गाँव जो नियम चल रहे हैं, उनको आप देखिए, समझिए, और ये भी एक बहुत बड़ा काम है, उनके पीछे का एक साइंटिफिक या सोशल आप बेस ढूंढिए, आधार ढूंढिए कि ये क्यों किया है। ये गलत चीज थी, कुर्तियां थी तो वो दुनिया में वो खत्म हो गई। जैसे बाल विवाह की प्रथा है, जैसे हम देखें तो दहेज प्रथा है, जैसे हम देखें सती प्रथा है,
वो गलत चीजें थी, कुरीतियां थी, पर अच्छी चीजें उसको हम लोगों को अडाप्ट करना चाहिए। जब उन कैंप में जाते हैं हम देखते हैं कि भाई कैसे वो लोग पानी की पूजा करते हैं, कैसे तालाब का पूजन करते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है तो कुएं का पूजन, तालाब का पूजन, कैसे पेड़ का पूजन। तो वास्तव में उसके पीछे जब वहां पर बात करते हैं तो उसके पीछे कितना बड़ा आधार है। उन लोगों ने ये ज्ञान नहीं दिया कि भाई पेड़ एनवायरमेंट के लिए कितने जरूरी है, कौन से पेड़ों ने सीधी सी बात क्या सिखा दी कि पेड़ में भगवान रहते हैं, या कोई ज्यादा महत्व का पेड़ है तो वो ज्यादा सिखा दिया कि इसका बहुत विशेष महत्व है, बड़ का, पीपल का। जब हम लोग अब साइंस के रूप में देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई इनसे हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कहीं डर बिठा दिया, कहीं पूजन करवा दिया। पानी के रूप में यदि हम देखें तो कितनी बड़ी चीज है कि आज ये कोई गलत परंपरा है कि भाई आज हम लोग यदि हमारे घर में प्रोग्राम है तो हम लोग कुएं का, तालाब का आभार करते हैं। तो एक तरह का थैंक्स देने का तरीका है नेचर को कि भाई हमने आपसे जाना। तो ये बहुत सारी ये वो हमको देखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को हम ठीक करेंगे तो बोल सकते हैं ना कि हमारे जो चीजें परंपरा चली आ रही है उनसे ही भारत आगे बढ़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पुनीत जी को भी वो किस्सा मालूम है कि एक बार हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अनुभूति के नाम से कुछ हमने रूरल एरिया में कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, 4 डेज कैंप थे। और हमने टारगेट किया था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से शहरी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने शायद कभी गांव देखा नहीं हो या इंटीरियर का गांव क्या है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरे युवाओं पर मुझे इतना विश्वास है, जो मेरे कुछ लोगों से बहस भी होता है कि हो सकता है कि आज के युवाओं का पहनना ओढ़ना कुछ भी हो, उसकी जींस नीचे से 4 इंच ऊंची हो रही हो, भले वो हेयर कट ऐसा रखता हो कि दोनों तरफ से बाल साफ कर रखे हो, वो अलग हो सकता है, पर देशभक्ति और समाज सेवा जब जब ये काम आते हैं तो वो कभी पीछे नहीं हटता है। जब हमने ऐसा आह्वान किया है कि गांव में जाना है, आप यकीन मानिए कि हमारे पास जितना हमें रजिस्ट्रेशन करना था उससे ज्यादा यूथ हमारे पास आ गया। हमने उनको क्लियर बोला कि आप लोगों को कोई लग्जरी नहीं मिलेगा, दरी पर आपको सोना पड़ेगा, खाने में आपको वहां का जो सिस्टम है दाल रोटी या जो भी वहां पर बनता है सिंपल मिलेगा, जो वहां पर लोग रहते हैं वैसा रहना, फील कराना है। ऐसे ऐसे घर के स्टूडेंट जिन्होंने शायद अपने घर में कभी ग्लास उठा के भी नहीं रखा होगा, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थे, उनने सबने बोला। और बल्कि इतने लोग हमारे पास आ गए कि हम कुछ लोगों को ड्रॉप करना पड़ा। जब उन गाँव में गए, उन कैंप में हम कुछ अलीराजपुर, झाबुआ, अलग अलग एरियाज में रह गए, और हमारा नाम ही था शिविर का अनुभूति, मतलब ये फील कराना कि भाई हमारे गाँव का जीवन कैसा है। अब उसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा आपको बताता हूँ। जब वो हमारा शिविर लगा, मुझे ध्यान है कि उस शिविर में अलग अलग गाँव में घूमा था। जो हमारा झाबुआ तरफ शिविर लगा था तो वहाँ छोटे छोटे जो कस्बे हैं या 10-10 20-20 मकान जो बने रहते, फालिया बोलते हैं वहां पर। तो 4 या 5 लोगों का ग्रुप था, उनको हम एक स्टडी देते थे कि भैया जाइए आप लोग उसको देख के आइए क्या वहाँ की चीजें हैं। जब वहां पर हम गए तो उसमें 2 गर्ल्स थी, कुछ स्टूडेंट थे, 5-7-8 बॉयज थे, एक टीचर थे। जब वहां घूम रहे थे तो काफी दूर ये लोग गए और उनको प्यास लगी, जो बॉटल वगैरह ले गए थे वो पानी भी खत्म हुआ। दूर कहीं उन्हें कुआं दिखा, कुएं के वहां पर 8-10 महिलाएं बैठी हुई थी पानी भरने के लिए। उन्होंने वहां पर देखा कि कुएं में पानी बहुत धीरे धीरे तो पानी सूख गया था, नीचे कुछ बूंद आ रही थी, और कुछ देर में जब वो पानी इकट्ठा होता है 1-2 बाल्टी, तो उस पानी को भर के खींचते थे। अब चूंकि वो आधे पौन घंटे इंतजार करने के बाद 1 बाल्टी भरती थी, ये लोग सब गए कि भाई हमको प्यास लगी। तो कि जिस महिला का नंबर था वो आदिवासी महिला थी, ग्रामीण क्षेत्र से थी, उसने बड़ी खुशी खुशी जो अपनी इतनी मेहनत से भरा हुआ पानी था वो इन सबको पिलवाया। उसने देखा और वापस इंतजार करने लगी। वो सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद जब हमने ये रखा कि भाई आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको लेकर जब हमने चर्चा रखा तो उसमें जो लड़की गई थी वो बोले सर मेरी धारणा बदल गई। उसके बाद घर में जो कि हम लोगों को पानी को बचाना चाहिए, देखना चाहिए। आज कितने सारे हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, और उसके बाद भी जल बचाइए दिया जाता है, पर वो एक इतना प्रभावी रूप से वो हम नहीं बता पाते। वो एक किस्सा उसने देखा और जीवन भर के लिए वो पानी बचा। फिर एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बड़ी चर्चा हम लोगों सर मेरी आवाज आ पा रही है क्या आप तक? पुनीत सर, am I audible to you?
यस यस आ रही है, सर की नहीं आ रही है। अच्छा, हमने देखा कि भाई जब हम लोग गांव भ्रमण पर जाते थे, सर्वे के लिए जाते थे, तो एक बड़े गरीब परिवार में 60 के कैंप का था। उसने पूछा कि भाई आपका, उसने बताया कि मैं 60% से पास हुई हूँ। और जब कैंप के बच्चों को ये मालूम पड़ा कि भाई वो 60% से पास हुई है, बिल्कुल अंदर गांव में रहने, ना कोई ट्यूशन है वहाँ पर, ना कोई उसकी किसी फैसिलिटी। सचिन सर, आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है, लो बैंडविड्थ बता रहा है आपके यहाँ से। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी 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 ये कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार हो जी रहा है। जी जी। हाँ तो बोलिए। ये से बहुत सारी चीजें, ये बात तो क्या, मैं अभी की बात करूं कि कैसे कुछ भारत अपनी भूमिका निभा सकता है, तो अब हम इस विषय पे आए और कैसे इसमें, जैसे एनएसएस का मैंने बताया रोल है, तो खासकर बात भी बोलते हैं कि एनएसएस जो हमको ज्वाइन करवाना है या विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करवाना है, तो एनएसएस के लिए जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो गांव में ले जाके काम करना या सड़क बनाना, श्रम, इसके लिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस, समाज सेवा के माध्यम से इसमें आपका व्यक्तित्व विकास हो। अब एक बड़ी चीज है जो यूथ इसको कर सकता है, जो अभी के हमारी युवाओं की आबादी और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे यूथ इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं और कैसे भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। तो साथियों, अभी जैसे हम लोग बात करें तो अभी कोविड की प्रॉब्लम सारी दुनिया में है। अब चूंकि इसके आने के बाद एक बड़े अवसर हम लोगों के लिए रहेंगे, यदि हम दुनिया के सभी देशों की बात करें तो आज एक बात ये मानी जाती है कि भारत की जो इमेज है वो दुनिया में बहुत अच्छी है। और पिछले कई सालों से जो हमारे भारत के लोग रह रहे हैं, तो कहीं ये सुनने में नहीं आया है कि अभी जैसे हमने सुना कि अमेरिका में दंगे हुए, एक बड़ा एक विषय रहा कि वहां पर जो नस्लवाद को लेकर, या हम बोल सकते हैं कि कलर को लेकर कि जो गोरे कालो या सर का आवाज फिर से बंद हो गया है। शायद ये जी बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा कुछ मेरी तरफ से। तो अब यदि हम बात करें तो अब हम लोगों के पास बहुत सारे अवसर हैं। एक बड़ी चीज जो, कुछ बातें हम शार्ट में यदि करें तो हम लोगों की जो ताकत है, आज तक शायद मैंने तो नहीं सुना या आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि भारतवंशी लगभग लगभग सभी महाद्वीपों में है, दुनिया के सभी बड़े छोटे देशों में हमारे भारत के लोग रह रहे हो, कि उनकी तरफ से वहां कभी वो प्रॉब्लम बने हो या वहां कभी उन्हें लड़ाई करी हो, दंगे करे हो। ये माना जाता है, मैक्सिमम लोगों का ये ओपिनियन है कि जो हमारा डीएनए या भारत के लोग हैं वो रूल को मानने वाले लोग रहते हैं, डिसिप्लिन लोग रहते हैं, अच्छा काम करने वाले रहते हैं। तो एक बड़ी चीज जो अभी आ रही है, खासकर युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर जो उभर कर आ रहा है, ये आ रहा है कि दुनिया के कई प्रमुख देश, जब हम बात करें जापान, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका की, वहां पर युवाओं की संख्या तेजी से कम हो रही है, जबकि हमारे लिए जो एक बहुत बड़ी युवा आबादी हमारे पास एक अच्छी आबादी है, तो वह पूरी दुनिया में अभी और लीड कर सकती है, वहां पर उसको काम मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए, ऐसी क्या कमियां हैं? तो मुझे 4-5 बातें ऐसी जिसको यदि हम लोग ठीक कर लेंगे तो भारत जो है वो दुनिया में लीड करने की स्थिति में आ जाएगा। इस पर खास जो पहली बात है वो ये चीज है कि
हम लोगों को एक तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अपने आप पर एक गौरव की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। भाई अभी भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, एक बड़ा अच्छा किस्सा है हम लोगों के बीच का ही। शायद आपने सुपर कंप्यूटर का नाम सुना होगा। सुपर कंप्यूटर हम लोगों को मालूम है, विजय भाटकर जी जो भारत के साइंटिस्ट हैं, उस कंप्यूटर को उन्होंने बनाया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जब बोले मैंने भारत में इसको प्रेजेंट किया, जब पहली बार रखा, तो लोगों ने उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे मन में था कि क्या कोई भारतीय इसे बना सकता है। बड़ा संघर्ष करके उन्होंने जर्मनी वगैरह दुनिया के अलग अलग देशों में ये बताया कि भाई मैंने किस तरह का कंप्यूटर बनाया है। और विदेशी मीडिया ने ये बात बोली कि बहुत अच्छी फास्ट कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर, जिसे परम कंप्यूटर जानते हैं, वो बना चुका है। जब ये चीज विदेशी मीडिया ने बोली, यूरोप के मीडिया ने बोली, तो भारत में हमने उनको सर आंखों पर बिठाया। दूसरा उदाहरण योग के रूप में यदि हम लेते, योग हमारे यहाँ सदियों से चला हुआ आ रहा है, सदियों से हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ की देन है। और कैसे हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि भाई ये तो साधु महात्मा जंगल में रहने वाले लोग या गांव के लोग करते हैं। पर वही योग जब विदेश में गया, उन्होंने माना ये तो बड़ा साइंटिफिक है, इसमें बहुत सारे सुधार हैं। वही योग जब योगा बनकर आया तो हमने इसको सिर्फ दिमाग से कर दिया। जब हम लोग या मैराथन और ये अलग अलग चीजें करने लगे, दौड़ो, विदेशों में सामूहिक रूप से योग का प्रदर्शन होता है। जब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हम जैसे मैराथन करते हैं, उन्होंने योगाथन किया और वहां पर प्लेस कम पड़ गया, पूरा टाइम्स स्क्वायर भर गया और लोगों को जगह तक नहीं मिली। इतना महत्व है। तो साथियों, कहने का आशय ये कि हम लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे लगती है खासकर जो माइंडसेट जो बहुत पहले 200-300 साल से हमारे अंदर भरा गया था, जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, कि जो व्यक्ति को तैयार किया जाता था सिर्फ नौकरी के लिए तैयार हो, और कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी चली आ रही है। जो हम लोगों का सोच है कि भाई हम लोग पढ़ के निकलेंगे, पढ़ाई हम नॉलेज के लिए नहीं करते हैं कि भाई इसमें हमें कैसा प्लेसमेंट होगा, कैसी नौकरी मिलेगी। आज चूंकि हम लोगों को इस सोच पर चेंज लाना चाहिए, सोचना चाहिए कि जॉब के जो पढ़ रहा हूँ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। कैसे मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मैं नौकरी लेने की जगह नौकरी देने वाला बनूं। कैसे मैं एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकता हूँ, कैसे नया काम कर सकता हूँ, यह सोच वो अपने अंदर लेके आए, जिसके लेकर पुनीत जी भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इंक्यूबेशन वगैरह अपना अपने मार्केट का भी वो बना हुआ है। ऐसे नए आइडियाज पर वो काम करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे खासकर आज लगती है, कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और निश्चित ही भारत कुछ समय बाद सारी दुनिया को लीड कर ही अभी भी कर रहा है, ये सब आहट हमको सुनाई देने लगी गई है। तो एक बड़ा एक प्लान शुरू हो गया है, क्योंकि उसमें कई विदेशी शक्तियां भी हैं, हमारे यहाँ का भी लोग है। एक बड़ी चीज की इस आधार पर आपस में भ्रम पैदा किया जाए, लड़ाई हो, आपस में युद्ध भिड़े। तो इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे अभी आपने देखा कि जेएनयू की कुछ घटनाएं जो पिछले कुछ, कि भाई किसी व्यक्ति विशेष से कोई विचारधारा से कोई हो सकते हैं, तो स्वाभाविक के विरोध करना युद्ध का एक अधिकार भी है। पर इन सब में देश हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। देश से संबंधित कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिसी को लेकर विरोध हो सकता है। तो एक बड़ी चीज की जो टकराव, एक बड़ा टकराव जो जाति के नाम पर हो सकता है, चाहे अगले दूसरों के नाम पे हो, गरीब अमीर के नाम पे हो, इस तरह की घटनाएं बहुत घटेगी। खासकर यहाँ यूथ को सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम इन बातों को रखते हैं तो साथियों, यकीन मानिए भारत विश्व गुरु बनेगा, लीड करेगा। तो कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ, यदि आप देखा होगा तो साल की प्रमुख घटनाओं में तो जो 5-6 के आधार पर देश जिसको हम बोल सकते हैं सर आपका ऑडियो ऑडियो क्रैक हो रहा है सर।
सचिन जी, आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है। सचिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू हो गया सर। हाँ सर। या अभी जो है जी, कि अभी जो है कोविड के बाद हम लोगों को कैसे क्या होगा, कैसे काम चलेगा, उनको बार बार बोलता हूँ कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए, हाँ, हर तरह से चलेगा। 130 करोड़ से ऊपर की आबादी से अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है। सारी व्यवस्थाएं हैं, जो काम प्रधानमंत्री जी को आह्वान है वो कर करना, इन चीजों को यदि हम रह जाएंगे तो निश्चित ही हम भारत का भी पुनर्निर्माण किया है, हमारे प्रदेश को। और अंत तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न मेरे युवा साथी बोलते हैं, भाई हमें तो अच्छा काम करना है, एनएस एनएस में हम काम करेंगे, विद्यार्थी परिषद में हम लोग काम करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए टाइम वेस्ट होगा। ये तो जो बीए बीकॉम या सिंपल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए काम है, हमारे लिए तो कैरियर है। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ कि ये सोच अपनी बिल्कुल बदले। यदि आप लोगों को आईएएस भी बनना है, बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, आपको कोई बहुत अच्छा व्यवसाय भी करना है, आपको किसी भी सेक्टर में जाना, आपको एक्टर भी बनना है, साथियों यदि आप लोग सोशल कनेक्ट नहीं रहेंगे तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ भी बन जाए पर आप सफल नहीं हो सकते। एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा आईपीएस, एक अच्छा कलेक्टर, अच्छा पुलिस अधिकारी कब बन सकता है? जब वो हमारे समाज के नजदीक है, जब वो समाज को देखता है कि भाई वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ के चैलेंजेस क्या है, तो वो उस पोजीशन में जब आता है तो उसका उस प्रॉब्लम्स का बारे में मालूम होता है तो उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढता है। जब वो समाज में काम करता है अलग अलग माध्यम से, वो देखता है जब अच्छा वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, अपना उद्योग डालता है, तो उसको समझ में आता है कि कौन सा काम मैं कर पाऊँ, उसकी सोच बढ़ती है कि किस चीज को मैं कर पाऊँ, तो वो उस तरह का उद्योग डालता है। क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उसको वो दूर करने का प्रयास करता है। एक अच्छा आर्टिस्ट तब बनता है जब वो प्रकार से काम कर रहा है। तो ये सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी भी फील्ड में आपका कोई भी एम हो, पर आपको किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहना चाहिए। और हमारा तो ध्येय बाकी है, हम तो एनएसएस में ये कहते ही हैं कि ये किसी के लिए हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस। देखिए कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एक अच्छा बोलना पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। क्योंकि आप लोग जब सोशल उसमें काम कर रहे हैं, आज मैं बोलता हूँ कि जब हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक युवा है, आज मैं देखता हूँ कि जो कॉलेजेस के भी यूथ हैं, यदि आज हम बोला जाए तो वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम उनको किसी बड़े व्यक्ति के सामने बिठाते हैं, वाइस चांसलर के सामने, प्रिंसिपल्स के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। वही मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जिसने काम किया है, वो कॉन्फिडेंटली बट कहीं भी बगैर बदतमीजी किए हुए अनुशासन के साथ अपनी बात कितने भी बड़े ऑफिसर के सामने रख सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जब मैं एनएसएस के युवा की बात करता हूँ तो मुझे मालूम है कि उसने जब सारे अपने का स्लम भी देखा है, उसने रूरल भी देखा है, उसने सारी प्रॉब्लम देखी है, तो जब वो कुछ काम करने आता है तो निश्चित ही उसके रिजल्ट बहुत ही चमत्कारी आते हैं। लास्ट में अपनी बात इसके साथ खत्म करूंगा, इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे ये चीजें प्लेसमेंट में भी सहायक होती है। आज जब बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह जब काम करने आते हैं तो उनकी पहली सोच जो रहती है कि हमें ऐसा यूथ मिले जिसने एनएसएस में काम किया हो। मैं अपना देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों के यहाँ एक बार प्लेसमेंट था, कंपनीज आई, टाटा, टीसीएस वगैरह सब कंपनीज आई।
अलग अलग तरह का रूम में प्लेसमेंट चल रहा था। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज थी जिनको टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट चाहिए थे, कुछ को मैनेजमेंट के स्टूडेंट चाहिए थे। अब चूंकि हम लोग मानते हैं कि भाई उसमें एक बड़ा जो जॉब रहता है, तो हर स्टूडेंट कैसे तैयारी करके आएगा, आज आपको भी बुलाया जाता है तो वो सब अपनी मार्कशीट्स लाए कि भाई मैंने ये इस तरह की सारी एग्जाम्स पास कर रखी है। स्वाभाविक है, जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, 90, 92, 95, 96। पर अब ये कोई एकमात्र क्राइटेरिया नहीं रह गया है। किसी ने कुछ ट्रेनिंग्स की, सर्टिफिकेट्स के सब लगा के लाए। उनको क्या लगा कि जब हमारा इंटरव्यू होगा तो हमें इस बारे में पूछा जाएगा। सब तैयारी करके आए भाई। जिन लोगों का इसका सॉफ्टवेयर को लेकर जो कंपनी आई थी उसको वो था, तो उन्होंने सारा कि भाई हमने क्या इंटर्नशिप की है, हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हमें कौन सी प्रोग्रामिंग आती है, वो सब तैयारी करके आए। सब मार्कशीट लाए कि हमसे ये पूछा जाएगा। आपको आश्चर्य होगा साथियों, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा जब वो स्टूडेंट सामने बैठे थे कि आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो पेड़ पर चढ़ा है। अब जो स्टूडेंट कुछ सोच रहा है कि अरे मेरे से तो ये C++ पूछेंगे, मुझसे तो ये जावा के बारे में पूछेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग करवाएंगे, ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि पेड़ पर कौन। लोग जवाब नहीं दे पाए, बड़ा हम लोगों का भी प्रश्न हुआ। फिर दूसरे ग्रुप में बैठे हुए वहां सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया कि आप में से कितने लोगों ने स्कूल कॉलेज के दौरान कोई ग्रुप बनाया है, कोई ग्रुप में काम किया है। आप में से बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, कोई फेमस 5 स्टार ग्रुप ऐसा बना रखते हैं। क्योंकि काम क्या रहता है उसमें, मूवीज भी जाते हैं, मॉल भी जाते हैं, पिकनिक पे भी जाते हैं। पर कब उस ग्रुप में हम लोग कितने लोगों को साथ चल के धीरे 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 कौन से बहुत सारे अच्छे काम करने लग जाते हैं हमें ही नहीं मालूम। जब ऐसे प्रश्न किए तो स्वाभाविक है कि सबके मन में आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों किया है। जब बाद में हम लोगों की बात हुई कि भाई इस तरह के क्वेश्चन करने का कारण क्या है या क्यों किए, तो बड़ा अच्छा जवाब था जो डिस्कशन में सामने आया। आप सोचिए कि जिस स्टूडेंट के मन में ये क्यूरियोसिटी है, पेड़ हम लोग देखते हैं और कभी ये नहीं रहता है कि वहां पर जो लगे हुए फल की चढ़ के देखें ऊपर कैसा लगता है। भाई आप लोग ऐसा मत करना कि बगैर कोई सावधानी रखे चढ़े। पर जिसके मन में ये आज क्वेश्चन आया है कि भाई पेड़ पे मैं चढ़ के तो देखूं कैसा लगता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएगा, कुछ बड़ा काम करेगा। नहीं तो बाकी तो सब ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। पर जिसकी लीक से काम करने की इच्छा है, जिसके मन में ये भावना है, ये क्वेश्चन है कि मैं कुछ अलग काम करूं, तो निश्चित ही किसी दिन वो एक बड़ा काम करेगा, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई बड़ा आविष्कार करेगा। ये उसके अंदर की चीज टेस्ट करने के होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ने ग्रुप में काम किया है, तो निश्चित ही जो 5 या 10 लोगों को लेकर साथ में चला है, कल से उसको किसी कंपनी में मैनेजर बना दिया जाता है, HR डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, तो वो हजारों लाखों लोगों को लेकर साथ में चल पाएगा, मजदूरों को लेकर चल पाएगा। 5-10 लोगों को जो लीड कर सकता है, तो निश्चित ही उसमें वो क्वालिटी है कि वो आज कंपनी के 1000 वर्कर को भी साथ में लेकर चल पाएगा, उनके लिए भी पॉलिसी बना पाएगा। हम लोगों की सभी की तरक्की, यदि हमने अकेले ने प्रोग्रेस की, बहुत पैसा कमा लिया, बेईमानी है यदि हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज पिछड़ा रह जाता है। आज आप लोगों से मैं पूछता हूँ, बिल गेट्स, रतन टाटा, ये सब नाम हम लोगों ने सुन रखे हैं। और भी बहुत से लोगों के उदाहरण है। आज हम कई कम्युनिटीज में देखते हैं कि भाई हम उदाहरण आता है जैन समाज में या दूसरे लोग देखते हैं कि आज बहुत सक्सेस लोग, करोड़ों अरबों रुपए की जिनकी दौलत थी, उन्होंने सब छोड़कर संन्यास ले लिया। आज क्या रीजन था, ऐसी क्या चीज थी, किस चीज ने उनको प्रभावित किया, क्या कारण था कि जब इतना पैसा कमाने के बाद भी भारत के कई राजाओं ने, कई व्यापारियों ने, अभी भी हम बात करते हैं रतन टाटा ने कि नहीं इतना पैसा मैं तो डोनेट कर रहा हूँ। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो अंदर से ये बात यहाँ से आती है, दिल को अच्छा लगता है कि भाई हम लोग हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो आप भी यकीन मानिए ये चीज रिटायर्ड होने के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, सब ये सोचते कि बाद में मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूंगा। आप अभी से यदि कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए, तो निश्चित ही आपको यहाँ से अच्छा लगेगा। ये चीज आपको आगे भी फायदा कराएगी, खुद के लिए भी आपका फायदा है, परिवार के लिए भी आपका फायदा है, समाज के लिए भी फायदा है, देश के लिए भी फायदा है। और निश्चित ही मुझे तो पूरा विश्वास है इस चीज में, 0.1% भी शक नहीं है कि भारत का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, लगभग लगभग हम फाइनल स्टेज में आ गए हैं और पूरी दुनिया को हम लोग रास्ता दिखाएंगे। उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही वो जो भूमिका रहेगी वो युवाओं की रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने शिकागो के उद्बोधन में कहा था कि भारत निश्चित ही एक दुनिया की पावर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को रास्ता दिखाएगा। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रहेगी वो युवाओं की रहेगी,
और वह सारे लक्षण, सभी चीज, सारे साइन हम लोगों को मिल रहे हैं। सिर्फ जरूरत है कुछ अब समझदारी रखने की, तो हम लोगों का विमान तो टेक ऑफ कर उड़ने ही वाला है, भारत विश्व गुरु बनने ही वाला है। आपने ये पूरा मुझे समय दिया, उसके लिए मैं मॉडर्न ग्रुप का आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ नेटवर्क वगैरह इसके कारण बीच में इंटरप्ट हुआ, कभी और रहा मौका तो हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। आपका निश्चित ही आपका जो वक्तव्य था वो पूरी तरह से सबके लिए प्रेरणादायी था, और जो आपने कहा है कि जन कल्याण के लिए एक छोटा कदम उठाना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और जो आपने कदम उठाए हैं अभी तक वो वाकई में सराहनीय है। आपने जिस तरह से बताया है कि यूथ को किस तरह से आगे बढ़कर काम करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से जितने भी यूथ हमें अटेंड कर रहा है वो निश्चित तौर पर एक बार तो पेड़ पे चढ़कर जरूर देखेगा आप। अ, इसी के साथ सर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना वक्तव्य रखा, आपने अपनी बातें रखी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सर। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमसे जुड़े रहे हैं, लगभग 105 पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े हुए थे, तो उन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और पूरे मॉडर्न ग्रुप की तरफ से, हमारे चेयरमैन श्री अनिल खरिया जी की तरफ से, वाइस चेयरमैन श्री शांतनु खरिया जी की तरफ से, और हमारे ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी की तरफ से मैं अर्पिता पटेल आपका सादर धन्यवाद करती हूँ सर, कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया सर। और इतने अच्छे और इतने सिंपल तरीके से किस तरह से छोटे छोटे कदम उठाकर हम एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, उस तरफ अग्रसर हो पाए, उसके लिए आपने जो भी हमें गाइड किया है उसके लिए सर धन्यवाद। अंत में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। फीडबैक लिंक जो है वो मैंने चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, तो प्लीज आप उस पर क्लिक करके अपना फीडबैक लिंक करिए। सर्टिफिकेट आपको जरूर इस आज के दिन में ही मिल जाएंगे। और हमारा एक और सेशन है 2 बजे, जिसमें सार्थक संस्था के फाउंडर श्री इम्तियाज अली जी जो है वो अपना वक्तव्य देंगे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ सर मैं आपको एक बार और धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप सभी का, मॉडर्न ग्रुप का, अनिल खारिया जी का, पुनीत जी का, आप सभी का धन्यवाद।